Now the next step is up to yesterday we have seen these steps. First step is target strength calculation. Next step is selection of the water cement ratio from the 10 to 62 and check with the durability aspects and the selection of the water content. Here for the other than the 50 mm slump, you have to adjust for the every 50 25 mm additional slump, you have to add the 3% additional water content. After that 30% of the superplasticizer usage purpose, you have to reduce the water content. And after that the cement content has to be calculated 350. This has to check with the durability aspects. Once this up to the steps are completed, now I am going to the fourth step. This step is little bit confusing and a little bit difficult, so you have to follow very careful. Okay, proportioning of the coarse aggregate and fine aggregate. Now come to the coarse aggregate requirement and fine aggregate requirement. How we can calculate the quantity of the CA and FA. From the table 3 of the IS 10262, volume of the CA and the zone 1 sand, for a water cement ratio of 0.5, it is given as 0.60. Now I am going to the table number 3. Table number 3. This is the table number 3. Okay, you have to thoroughly aware of this. Little bit confusing here. Now you see what is the NMA you are using here. In this the NMA is 20 MSA. Okay, please follow carefully. Now you see NMA is 20 and zone 1 sand is given in the question paper. So this amount, now you see for the 20 nominal maximum size of the aggregate, this is the for the zone 1.6. I am selecting the volume of the coarse aggregate per unit volume of the total aggregate for the different zones of the fine aggregate. Okay, if you are using the zone 2, then you have to take this 0.62. if you are going to the zone 3 sand, then go for the 0.4 when your nominal aggregate size is 20. For example, suppose if you are using the 10 mm aggregate, then go for the 0.44. Okay, this is the volume of the CA for this particular. But in the question paper, in the present problem, the zone 1 sand is given in the question paper, that means in the numerical itself, and this nominal size is also supplied in the question paper. So that's why I am looking here 20. And but one thing is true, this table number 3 is meant for 0.5. That means water cement ratio of the 0.5 only. Very important point. This table number 3 is applicable for a water cement ratio of 0.5. Somewhere it is written. पेज नंबर 3 में लिखा है समवेयर. देखो approximate values of for this coarse aggregate for the table 3 for water cement ratio of 0.5. समझ में आ गया ना. ब्लाइंडली है ये टेबल में जो वैल्यू है उठाना मत. You don't take consider this value. This table is applicable for a water cement ratio of 0.5 only. Very important. Now you see here appropriate values of the aggregate volume is given in the table T for a water cement ratio of the 0.5, which may be suitably adjusted for the water cement ratios. That means other suitable other water cement ratios के लिए suitably adjust करना पड़ेगा. कैसे adjust करना मैं बताता हूँ. Okay, so this table का जो भी ये 0.6 किस लिए पता है, जो भी ये 20 NMA के लिए 0.6 है, this is for water cement ratio 0.5. But our question paper में, but present problem में, what is the water cement ratio you are taking here? That means in the present problem, that means today's problem or given problem, the water cement ratio you are finally selected 0.4 है कि नहीं? That means you are selected 0.4. But जो भी table number 3 में जो भी value दे दिया है, ये किस लिए? This table number 3 is valid only if your water cement ratio is 0.5. क्या करूं? That means आपका जो water cement ratio है कम है. तब एक काम करना, ये क्लास दिया गया था, मैं क्लास लिख रहा हूं पर मैं क्लास लिख रहा हूं, ध्यान से मतलब पढ़ो. द कोर्स एग्रीगेट इधर क्लास लिख रहा हूं. द कोर्स एग्रीगेट should be increased
इंक्रीज्ड 1%. 1% मतलब है 1 डिवाइड बाय 100 ना, दैट इज इक्वल 0.01. विल यू एग्री दिस? 1% बोलो, अदरवाइज 0.01 बोलो, मीनिंग इज सेम. Okay, 1% बोलो, otherwise 0.01 बोलो, meaning is same. So you have to increase 0.01 for 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 every 0.05 water cement ratio reduction. Very very important. ये कितने समझ में आया? I don't know. ओके, क्या करना, अगर मान लीजिए आपका जो भी टेबल नंबर 3 में आपका जो भी वॉल्यूम आया, दैट मींस फॉर 20 mm एनएमए के लिए, नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एनएमए के लिए, फॉर द जोन 1 सैंड के लिए आपका 0.6 है, ये अब नहीं ले पाओगे. क्यों? दिस टेबल इज मेंट फॉर 0.5. 0.5 है तो ये ले सकता है, बट प्रेजेंट केस में आपका वाटर सीमेंट रेशियो 0.4, इसलिए एक क्लास दे दिया है, मतलब एवरी रिडक्शन ऑफ द 0.05, दैट मीन 0.05 डिक्रीज हो गया किसमें? वाटर सीमेंट रेशियो में. कोर्स एग्रीगेट क्या करना? बढ़ाना ही है, इंक्रीज करना. कितने 0.01 इंक्रीज करना. दैट मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया तो कोर्स एग्रीगेट बढ़ाना ही है. एटलीस्ट ये पॉइंट है, ध्यान में रखो. ओके, नाउ प्रेजेंट प्रॉब्लम में मेरा वाटर सीमेंट रेशियो 0.4. एक काम करो, 0.5 का टेबल से 0.4 लाने के लिए मैं कितने रिड्यूस करूं? एक बार है 0.05 रिड्यूस करता हूं, मतलब वन मोर टाइम 0.05 रिड्यूस करता हूं. एक स्टेप में, in the one step I will reduce this much, next step I will reduce. So मैं इधर तक पहुंच जाता हूं ना भाई. 0.5 इधर भाई, इधर 0.4 इधर भाई, 0.4 है. I want to come here. So फर्स्ट इनिशियल स्टेप में मैं 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करता हूं. फिर तब मेरा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा? 0.45 होगा. 0.45 होगा. फिर वन मोर टाइम आई विल रिड्यूस 0.05. दैट मीन्स आई विल अचीव, दैट मीन्स 2 स्टेप्स करना पड़ेगा. एक बार एक स्टेप में 0.05 से कम करना पड़ेगा, एक बार में 0.05 कम करना. दैट मीन्स 2 टाइम्स आई हैव रिड्यूस्ड द 0.05 टाइम्स ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो. एक बार के लिए, एक बार वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करने में कोर्स एग्रीगेट कितने बढ़ाना? 0.01 बढ़ाना. ये सेकंड टाइम के लिए 0.01 बढ़ाना. सो दिस प्लस दिस, ये दोनों ऐड कर दीजिए 0.02. उसका मतलब क्या है? सपोज इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम इफ यू गो फॉर द 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो, वॉट एवर द टेबल 3 वैल्यू, टेबल 3 0.6 आया ना टेबल 3 से, ये 0.36 को आप है मतलब 0.02 ऐड करना पड़ेगा. क्यों ऐड किया आपको पता है, बिकॉज वाटर सीमेंट रेशियो दिस 0.6 इज फॉर 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, बट प्रेजेंट केस में मेरा वाटर सीमेंट रेशियो 0.4, इसलिए मैं एक काम करता हूं, एवरी 0.05 रिडक्शन के लिए 0.01 इंक्रीज करना, प्लस करना. एवरी 0.05 के लिए अनदर 0.01 इंक्रीज करना. सो दिस 0.01 कोर्स एग्रीगेट में इतना बढ़ाना. सो मेरे को टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट 0.62 हो जाएगा. दिस मच एक्सप्लेनेशन इज एनफ. ओके, दैट मीन्स मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, आपको कितने समझ में आया आई डोंट नो. फॉर एग्जांपल आपका 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए दैट मीन्स 0.6 आ गया कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम. मान लीजिए इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम 0.35 वाटर सीमेंट रेशियो यूज किया, तब कोर्स एग्रीगेट कैसे बढ़ाना? दैट मीन्स देखो, अगर मैंने 0.05 कर दिया तो 0.45 हो जाएगा. वन मोर 0.05 माइनस कर दिया तो 0.40 हो जाएगा. ओके, वन मोर टाइम कर दिया तो 0.35 हो जाएगा. उसका मतलब कितने बार रिड्यूस किया वाटर सीमेंट रेशियो? वन टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. समझ में आ गया ना? सो 3 टाइम्स है. आप क्या करना, कोर्स एग्रीगेट का जो वॉल्यूम में 0.01 बढ़ाना ही है. उसका मतलब 1%, 0.01 बढ़ाना. सो मेरे को कुल मिलके 0.35 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए 0.63 हो जाएगा. ओके, ये दोनों एग्जांपल्स है, मतलब इट इज क्लियर. सो कम बैक टू द प्रॉब्लम.
10 to 62 में आ जाइए। देखो देखो एक्चुअली टेबल 3 इज मेंट फॉर 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए। फिर मतलब इधर आ जाइए वापस, इधर क्वेश्चन पेपर में आ जाइए। नाउ यू सी from the table volume of the coarse aggregate corresponding to 20 mm size aggregate, the fine aggregate zone 1, the water cement ratio of the 0.5 is equal to 0.6. In the present case, water cement ratio is 0.4. Therefore, volume of the coarse aggregate required to be increased to decrease the fine aggregate content. As the water cement ratio is lowered by 0.1, the proportion of the volume of the coarse aggregate is increased by 0.2. कैसे, किस रेट पे? Either plus or minus 0.01 for every 0.05 change in the water cement ratio. अभी तक मैंने दो एग्जांपल लेके बता दिया. Therefore, the corrected portion of the coarse aggregate for the present problem of the 0.4 water cement ratio is equal to 0.62. Okay, ये 0.62 क्यों आ गया टेबल 3 में? एक्चुअली ये टेबल 3 में ओनली 0.6 है, ये 0.6 है, बट 0.6 है, क्यों बदल दिया 0.62? बिकॉज आपने 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो यूज नहीं कर रहा है। आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो देखो, द फाइनल वाटर सीमेंट रेशियो इज यू आर सेलेक्टेड 0.4, इसलिए आपका जो भी टेबलर कॉलम में जो भी वैल्यू आया उसको मतलब दो बार 0.01 इंक्रीज किया, ये फाइनल है। इन केस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज नॉट एंगुलर वन, then also volume of coarse aggregate may be required to be increased suitably based on the experience. This is valid for the coarse aggregate of the angular one. अगर मान लीजिए rounded aggregate any other cases के लिए based on the experience you have to increase or decrease. Next ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, फॉर द पंपेबल कंक्रीट के लिए कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट है 10% कम करना ही है। For the pumpable concrete, the coarse aggregate content should be decreased 10%. ये कहाँ लिखा है पता है? 4.4.1 में लिखा है। Now go to the back side. 4. Now you see, for more workable concrete, which is sometimes required when the placement is by pump. अगर pump use किया है, when the concrete is required to be worked out around the congested reinforcement steel, it may be desirable to reduce the coarse aggregate up to 3%, 10%। जो भी ये टेबल 3 में जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू को 10% कम करना ही है। कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है कम करना, ये बताया था 10% 4.4.1 में। विद दिस बैकग्राउंड वंस अगेन आई एम गोइंग हियर। नाउ यू सी, देखो आपको टोटल अभी 0.62 आ गया ना भाई, ये 0.62 आ गया ना। सो ये 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, ये 0.9 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 10% कम करना ही है, इसलिए 0.9 से मल्टीप्लाई किया। ओके, दैट मीन 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। सो 10% पंपेबल कंक्रीट का पर्पस के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई किया, 0.56 फाइनली मेरे को आ गया। सो द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल 0.56। अगर वॉल्यूम ऑफ द 56 कोर्स एग्रीगेट 0.56 है तो फाइन एग्रीगेट रेत कितने, बालू कितने? दैट मीन टोटल है कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट मिलके 1 ना, सो 1 में से ये 0.56 माइनस कर दीजिए, दैट इज 0.44। ये वॉल्यूम किसका 0.44 है, मतलब सैंड का है, 0.56 है कोर्स एग्रीगेट का। ओके ना, ये दोनों वॉल्यूम्स फिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप मिक्स कैलकुलेशन। 6th स्टेप इज मिक्स कैलकुलेशन। मिक्स कैलकुलेशन फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए नॉर्मली कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। द फार्मूला इज मास ऑफ द सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट इनटू 1/1000। दिस इज द फार्मूला। सो आपका मास ऑफ द सीमेंट कितने हैं? इसको देखो, मास ऑफ द सीमेंट है 350, इसको देखो ये 350 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने हैं? लैबोरेटरी में निकालोगे 3.15, ओपीसी है 3.15, अगर पीपीसी है तो 2.98 2.99। आप एक्चुअल टेस्ट करो, वो टेस्ट का बेसिस पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिनोमिनेटर में इनटू 1/1000। ये कितने वॉल्यूम आ गए भाई? दैट मींस जो वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट है 0.111 मीटर क्यूब। दिस मच क्यूबिक मीटर मतलब सीमेंट, मतलब आप है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मिलाने के लिए बना मतलब यू हैव टू मिक्स इट। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर है 1 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1.0। सो 140 इज द मास ऑफ द वाटर। इसको देखो 140 है ना, इसको मास ऑफ द वाटर, वाटर कंटेंट है फाइनली 140 को रिड्यूस हो गया ना, सुपर प्लस से यूज किया इसलिए 30%। ओके, सो 140 डिवाइडेड बाय फार्मूला इज सेम, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट इनटू 1/1000। देखो द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मेरे को आ गया था 0.14 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द केमिकल एडमिक्सचर है मैक्सिमम 2% ऑफ द सीमेंट वेट। सीमेंट वेट कितने ब्रदर? सीमेंट वेट 140 kg है,
140 kg multiplied by 2%. That means 2%. सेंट मतलब है 2 डिवाइड बाय 100 इंटू सीमेंट कितने 350 kg ना 350 kg. ये 10 कैंसिल. ओके ये 10 कैंसिल. ओके ये कैलकुलेट करो 7 kg आ जाएगा. 7 kg. That means 7 kg super plasticizer. That means 2% he has assumed. That means maximum है 2%. Okay 7 kg divided by ये 1.145 क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एडमिक्सचर. ये लैबोरेटरी से निकालो आप, अदरवाइज एश्यूम करो इतना इंटू 1/1000. फार्मूला इज सेम. मास ऑफ एनी मटेरियल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय 1/1000. ये देखो ये मतलब ये क्यूबिक मीटर कंक्रीट में मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर का वॉल्यूम कितना आया 0.06. नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट्स है 0.743. ये कैसे आ गया? दैट मींस दिस 0.06, दिस 0.14 एंड दिस 0.111. ये तीनों मिला दो. दिस प्लस ये तीनों आइटम मिला दो. 1 में से माइनस कर दो. 1 माइनस दिस थिंग. टोटल है आपका जो मिक्स में क्या क्या आइटम्स रहेगा भाई. दैट मीन्स ये 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट है. दिस इज 1 क्यूबिक मीटर. 1 क्यूबिक मीटर मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस इज 1 मीटर. दिस इज 1 मीटर एंड हाइट इज 1 मीटर. इसमें मान लीजिए क्या क्या आइटम्स रहेगा. सीमेंट रहेगा. नेक्स्ट एसपी रहेगा, सुपर प्लास्टिसाइजर रहेगा, है ना, सुपर प्लास्टिसाइजर रहेगा. फिर इसके बाद वाटर रहेगा. फिर एग्रीगेट्स रहेगा. एग्रीगेट्स आर CA प्लस FA रहेगा. समझ में ना. सो इसका वॉल्यूम आपको पता है कितने 0. सीमेंट का जो वॉल्यूम है कितना भाई. हाँ सीमेंट का जो वॉल्यूम है 0.111 क्यूबिक मीटर. सुपर प्लास्टिसाइजर का वॉल्यूम भी निकाला मैंने. ये आया था 0.006 मीटर क्यूब. नेक्स्ट वाटर का जो वॉल्यूम भी निकाला मैंने 0.14. एक काम करो ना, टोटल 1 क्यूबिक मीटर है. सो ये दोनों मिलके मैं फाइंड आउट करता हूं. कैसे? दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑल द मटेरियल मिलके 1 ना. ये काम करो ना, टोटल वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर में से ये तीनों मटेरियल सम अप करो. ये तीनों मटेरियल है सम अप करो. ये माइनस कर दो. यही किया ना. द सेम थिंग इज डन हियर. देखो 0.11 प्लस दिस. फाइनली कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है ना 0.743 क्यूबिक मीटर. ये क्या है? ऑल इन वन एग्रीगेट. ऑल इन वन एग्रीगेट मतलब है कोर्स एग्रीगेट प्लस 0.743. ये है ऑल इन वन एग्रीगेट मतलब CA प्लस FA. ये दोनों मिलकर 0.74. ये तीनों वैल्यू का सम है. इधर लिखो भाई. 1 में से ये माइनस करो. ये ऑल इन मतलब CA प्लस FA. नाउ मैं सेपरेट करना है. कोर्स एग्रीगेट कितने kg, फाइन एग्रीगेट कितने. अब मैं दोबारा देखो 0.743 इज व्हाट CA प्लस FA. ये टोटल इंटू 0.56. ये 0.56 कहां से आया पता है? ये 0.56 है, इधर से आ गया. देखो ये वॉल्यूम है. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल 0.56. 0.56. देखो इधर. नाउ इधर 7.743 वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 0.56 इंटू 2.74 क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट का इंटू 1000. दिस इज द फार्मूला. कितने kg? 1140 kg कोर्स एग्रीगेट. 1140 कोर्स एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट के लिए सेम. जो भी फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम कितने हैं? 0.44. ये ले लो 0.44 इंटू फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो इंटू 1000. यही किया ना. देखो 0.744 टोटल वॉल्यूम. ये आ गए ना टोटल CA प्लस दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 0.44 इंटू 2.74 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. आप लैबोरेटरी में ये वैल्यू निकाल इंटू 1000. कितने? 896 kg बालू. दैट मीन्स फाइन एग्रीगेट. रेत है 896 kg मिलाना. कोर्स एग्रीगेट है 1140 kg मिलाना. एंड दिस सुपर प्लास्टिसाइजर कितने मिलाना? 7 kg मिलाना ही है. एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर है 140 लीटर्स पानी मिलाना ही है. एंड सीमेंट है 350 kg मिलाना. यही है ना. आखिरी में रिजल्ट मतलब मिक्स प्रोपोर्शन. 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट के लिए सीमेंट 350 kg, वाटर है 140 kg, फाइन एग्रीगेट 896, कोर्स एग्रीगेट 1140 एंड केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर 7 kg एंड वाटर सीमेंट रेशियो. दिस इज ओवर. बट नाउ द ट्रायल मिक्स. बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखो
aggregate should be used in the SSD condition. Very very important. ये SSD condition मतलब क्या है? Saturated surface dry. दैट मीन्स कंक्रीट में जब भी आप कोर्स एग्रीगेट हो फाइन एग्रीगेट यूज करोगे, उसका जो कोर्स एग्रीगेट का जो सरफेस है ना, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर है, मतलब वाटर है कंप्लीटली, मतलब सबमर्ज करना पड़ेगा। पहले कोर्स एग्रीगेट को बाल्टी में सबमर्ज करो, दैट मीन्स जितना भी कोर्स एग्रीगेट है एक बाल्टी पानी में डुबा दो। डुबाने के बाद बाहर लेके आओ, बाहर लेके आने के बाद एक एक कोर्स एग्रीगेट को वाइप करना पड़ेगा। वाइपिंग मतलब है पानी से जो भी एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट है, ये बूंद है, मतलब ये निकालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। सैचुरेटेड मतलब क्या है? कंप्लीटली ये जो भी बाल्टी में जब भी आप 24 आवर्स के लिए पानी मतलब डुबाओगे पानी में, तब जो भी ये एग्रीगेट है कंप्लीटली मतलब वो पानी पी लेगा। अगर नहीं सही से पानी नहीं पिया, इसके पेट के अंदर है थोड़ा थोड़ा कैविटीज है, तब क्या होगा? अगर आपको ये बोन ड्राई एग्रीगेट है, सूखी सूखी माल है, मतलब मिक्सर में डाल दोगे, तब क्या होगा? जो भी आपका 140 लीटर्स है ना, ये 140 लीटर्स है, पूरा पूरा इनका एग्रीगेट का पेट में चले जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस एग्रीगेट शुड बी ऑलवेज एसएसडी कंडीशन। एसएसडी कंडीशन में डालना चाहिए। उसका मतलब सरफेस में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इनसाइड है उसका स्टमक में पूरा कंप्लीट है, वाटर है, मतलब वो सैचुरेटेड होना चाहिए, यही कह रहा है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, द slump shall be measured and the water content dosage mixture shall be adjusted, achieving the required sum based on the trial mix if required. The mix proportion should be reworked for the actual water content and checked for the durability requirement. Now you see, two more trials have variation of the plus or minus 10% of the water cement ratio in the step A number 10 should be carried out in a graph between the three water cement ratios and their corresponding strength should be plotted. Work out the mixed proportion for the given target strength for the field trials. Durability requirements will be met. उसका मतलब क्या कह रहा है पता है? फाइनली ये कितने समझ में आया? आई डोंट नो। देखो फाइनली आपको जो भी मिक्स प्रोपोर्शन आया, वो मिक्स प्रोपोर्शन में मतलब 3 सैंपल्स बनाना ही है। आपका प्रेजेंट केस में वाटर सीमेंट रेशियो कितने भाई? 0.4 ना। 0.4 के लिए आप है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया फॉर एग्जांपल 46 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया फॉर एग्जांपल। ओके, 0.4। सिमिलरली प्लस आर माइनस 10%, प्लस आर माइनस 10% मतलब क्या है? 0.3 के लिए एक बार वन मोर मतलब वाटर सीमेंट रेशियो सेट करके फिर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो, दैट मींस 50। ओके, 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिमिलरली 0.5 के लिए वन मोर 10% इंक्रीज करके वन मोर टाइम आप है मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल दीजिए। ओके, आपके पास है 3 सैंपल्स है, दैट मींस ये आ गया था मान लीजिए 32 न्यूटन पर एमएम। दैट मींस यू हैव 3 पॉइंट्स, एम आई राइट? दैट मींस ये वाटर सीमेंट रेशियो, दैट मींस ये 0.5 के लिए, ये है 0.4 के लिए, ये वैल्यू है 0.3 के लिए। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन कर्व। एक्चुअली वाटर सीमेंट रेशियो को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कर्व है, बेसिक कर्व है, ऐसा रहता है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वाई एक्सिस में एंड वाटर सीमेंट रेशियो एक्स एक्सिस में, बेसिक कर्व ऐसा रहते हैं ना। सो ये बेसिक कर्व है, खुद का कर्व प्लॉट करिए। वो खुद का कर्व प्लॉट करने के लिए एक काम करो, जो भी आपका ट्रायल मिक्स में मतलब 0.4 यूज करके एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो। फॉर एग्जांपल ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक पॉइंट आ गया, फिर 0.5 के लिए मतलब वन मोर पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.3 के लिए इधर आएगा। ये 3 कर्व्स आ गए ना भाई, ये 3 कर्व्स आ गए ना। यू हैव टू ड्रॉप वन ब्यूटीफुल लाइन। ओके सॉरी, ओके थोड़ा ऐसा आ जाएगा। ओके ना, हाँ ऐसा आ जाएगा। वंस ये कर्व एस्टैब्लिशमेंट हो गया, वंस ये कर्व एस्टैब्लिशमेंट हो गया, नाउ आपको ये कर्व से एग्जैक्टली आपको कितने चाहिए? देखो अगर 0.4 यूज किया तो आपको आ रहा है 46 एमपीए आ रहा है, समझ में आएगा ना। अगर 0.3 यूज किया तो आपको आ रहा है 50 एमपीए आ रहा है। अगर मान लीजिए ये 0.5 आ गया तो आपको 32 एमपीए आ गए। नाउ एक्चुअली यू आर द बेस्ट इंजीनियर, तभी कह सकता है, देन ओनली आई कैन से दैट योर एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कितने साइट पे? M40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना। दैट मींस आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 41 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तभी चलेगा। 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तभी चलेगा, 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है तभी चलेगा, समझेगा ना। बट आपको तो 49 एमपीए आ गया, 49 एमपीए चलेगा बट अनइकोनॉमिकल हो जाएगा ना। दैट मींस यू आर नॉट ए बेस्ट इंजीनियर, एम आई राइट? बिकॉज आप है मिक्स डिजाइन तो किया, लेकिन है
M40 मांगा है, लेकिन आपने लगभग लगभग M50 दे रहे कंक्रीट। सो मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, सस्ता नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करना, आपका जो भी मांगा गया है M40, सो उसको ठीक नजदीक, दैट मीन्स वेरी वेरी नियरेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस किया है, देन यू आर बेस्ट इंजीनियर। दैट मीन्स आपको L&T कंपनी आपको तारीफ करेगा, आपको इंक्रीमेंट दे देगा, समझेगा ना। मान लीजिए M40 मांगा तो आपने 52 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंक्रीट डलवा रहा है, तो कंपनी डूब जाएगा, कंपनी है मतलब लॉसेस में चले जाएगा। क्यों, M40 इज रिक्वायर्ड, आपने M50 ग्रेड कंक्रीट मतलब सप्लाई कर रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। सो ये वंस फॉर दैट पर्पस आपको वंस ये करो एस्टैब्लिशमेंट हो गया, अब आपको क्या चाहिए, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर चाहिए ना। एक काम करो ना, एक काम करो, इसको देखो, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज 30 है ना, दिस इज 40, दिस इज 50, सॉरी दिस इज 45 फॉर एग्जांपल, है ना, दिस इज 45, दिस इज 50, वाई एक्सेस में कुछ स्केल से कंसिडर करो ना, ऐसा 60 ऐसा है ना। सो आप एक काम करो, इधर 40 का पॉइंट पकड़ो, यू हैव टू 40 का पॉइंट पकड़ो, ऐसा 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 ऐसा, इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो, यू हैव टू स्टार्ट एट 40, यू हैव टू स्टार्ट एट 40, 40 के पास स्टार्ट करके ऐसा 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 चले जाइए, ये करू को टच कर, ये करू कौन सेट किया, ये करू है यू आर सेटेड, दैट मींस यू हैव सेटेड दिस करू। कैसे, क्योंकि आपने फर्स्ट ट्रायल बेसिस में 0.4 यूज करके 28 दिन में क्यूब निकाला, 46 आ गया, मतलब 0.5 के लिए इतना आया और 0.3 के लिए आया। सो 3 पॉइंट बेसिस पे ये करू ड्रा किया। इस करू में आप है 40 में, यू हैव टू स्टार्ट, यू नीड 40 ओनली ना, बिकॉज आपको तो बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट इंजीनियर अवार्ड। बेस्ट इंजीनियर अवार्ड तभी मिलेगा एग्जैक्टली जो मांगा गया था उतना ही दोगे, ना ज्यादा ना कम। सो मैं ये 40 को पकड़ के ऐसा 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 ये करू में आता हूं, ये करू को ये टच करके देखे, देखो देखो, ये इधर आ गया, इधर आ गया, कितने आ गए भाई, ये है 0.4, ये 0.45। सो आई कैन से दैट दिस इज 0.435, देखो 435। So, this is the water cement ratio you have to finally adopted. That means अगर आप 0.435 इस्तेमाल किया है, आपका जो भी 28 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा 41 MPa आएगा, अदरवाइज 42 MPa आएगा। सो आपको बेस्ट इंजीनियर अवार्ड मिल जाएगा, कंपनी भी खुश, आप भी खुश। ये कैसे आ गया, फॉर दैट पर्पस आप इनिशियली नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब आप कर दीजिए, दैट मीन्स नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसा आप मिक्स डिजाइन करता है कर दीजिए। करने के बाद आप आखिरी में, ये आखिरी में लास्ट ट्रायल्स मिक्स करोगे, ट्रायल मिक्स करोगे ना, इसमें 2 more इनिशियल ट्रायल्स विथ द वेरिएशन ऑफ द 10%, दैट मीन्स एक पॉइंट है लोअर साइड, एक पॉइंट हायर साइड है, मतलब कैरी करो, कैरी करके मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है क्यूब्स का निकालो। सो नाउ यू विल गेट द 3 पॉइंट, उस बेसिस पे ये करो, खुद का करो जनरेट करो, यू विल एस्टैब्लिश ये ओन करो। दैट मीन्स अभी हम लोग है, पहले तो जीपीएस यूज करते हैं ना, मतलब अमेरिका वालों के ऊपर, नाउ अभी आप अपना जो इंडिया वाले तो रॉकेट सैटेलाइट्स यूज करके अपना नाविक खुद का, अपना देश का खुद का हो गया ना। सिमिलरली आपको वाटर सीमेंट रेशियो को एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में खुद का करू डेवलप करो। ये खुद का करू किसका, फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ योर मटेरियल, जो भी आपने जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है ना, ये तो कोर्स एग्रीगेट 2.74 एंड फाइन एग्रीगेट 2.74 एंड सीमेंट है 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द ग्रेडेशन एंड फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सुपरप्रेशर 1.145, जो भी इस प्रेजेंट केस के लिए तो ये कर्व वैलिड है, मात्र दिस कर्व इज वैलिड फॉर दिस सेट ओनली, दिस सेट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये जो भी ये सेट के लिए ये कर्व वैलिड है, मगर मटेरियल बदल गया तो ये कर्व शुड नॉट बी वैलिड। दैट मींस यू आर एस्टैब्लिश्ड योर ओन कर्व, योर ओन कर्व बेस्ड ऑन योर प्रिलिमिनरी मिक्स डिजाइन। आपने जो प्रिलिमिनरी मिक्स डिजाइन है इधर किया ना भाई, इसको देखो, मतलब आपने ये मतलब टेंटेटिवली जस्ट नाम के लिए मतलब कुछ डमी लेके, दैट मींस ये फर्स्ट स्टेप देखो, ये कैसे लिया, दैट मींस ये जो भी है ये दिस ये वाटर सीमेंट रेशियो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस में मतलब 0.4 ले ले। क्यों 0.4 ले लिया, अगर 0.4 ले लिया तो इंप्लीकेशन क्या है, गलती क्या है, इस 0.4 ले लिया तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 49 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, फिर उतना हमें नहीं चाहिए, मतलब कंपनी है अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन बेस्ट तभी कहा जाएगा व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली रिक्वायर्ड compressive strength. For that purpose, you are establishing
ये ओन करो, मतलब यू आर एस्टैब्लिशिंग योर ओन करो। ओके, सो ये काम पूरा करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द कोड इज सेइंग, द कोड कह रहा है यू आर द बेस्ट इंजीनियर तभी कह देगा आफ्टर कंप्लीट दी, मतलब ये प्रोसीजर होने के बाद 2 मोर ट्रायल मिक्सेस करके अपना ओन कर्व्स जनरेट करके तब कर लीजिए। मतलब मैं वंस अगेन आज का जो भी पढ़ाया है, मतलब मैं दोबारा आ रहा हूं। देखो, प्रोपोर्शन ऑफ द सेवंथ स्टेप, ये टेबल 3 में से 0.6 आ जाएगा। ये 0.6 को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट पता है? वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 रेट डिक्रीज के लिए, मतलब 0.01 इंक्रीज करना, इस रेट पे करना ही है। ओके, सो 0.62 आ जाएगा। ये 0.62 को 0.9 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिस इज ए पंपेबल कंक्रीट। पंपेबल कंक्रीट केस में 10% है, कोर्स एग्रीगेट है, कम करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कोड कह रहा है। ओके, सो 0.9 से मल्टीप्लाई किया। ये 0.56 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सीए, वॉल्यूम ऑफ द कोर्स फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होगा? 0.44। ये दोनों मिलके 1.0। नाउ मिक्स कैलकुलेशन, लास्ट स्टेप है मिक्स कैलकुलेशन। फार्मूला क्या ब्रदर? मास ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल इनटू 1/1000। इसी बेस में देखो सारे मैंने कैलकुलेट किया। फिर टोटल वॉल्यूम इज 1 ना, 1 में से ये माइनस कर दीजिए। ये माइनस करने के बाद ये वॉल्यूम आ जाएगा। फिर मतलब आपका जो भी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये वैल्यूज है, दैट मीन्स ये वैल्यू कितने हैं? 0.56 ना, 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 2.74 इंटू 1000 कर दिया तो केजीस में आ जाएगा। किसका? कोर्स एग्रीगेट का। सिमिलरली ये फाइन एग्रीगेट का 0.44 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, लैबोरेटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे पाइक्नोमीटर टेस्ट से, पाइक्नोमीटर है ना, फिर वो पाइक्नोमीटर टेस्ट में जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कोर्स एग्रीगेट का ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो मिक्स प्रोपोर्शन पर क्यूबिक मीटर करेगा। फिर इसके बाद ट्रायल मिक्सेस को जाना ही है। ये ट्रायल मिक्सेस में अपना करके थोड़ा बहुत है जो भी इनिशियली ना, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, देखो ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस 0.4 ले लिया ना, इसको मैं सुधार रहा हूं। आई एम चेंजिंग दिस। ये इंस्टेड ऑफ 0.4, अगर 0.4 ले लिया तो मेरे को 48 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये मेरे को उतना नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी है घाटा में जाएगा या ना, इकोनॉमिकल हो जाएगा। टू अवॉइड दैट मैं एक काम करता हूं, थोड़ा बहुत क्या करता हूं, थोड़ा बहुत है पानी का कंटेंट बढ़ा देता हूं। अगर पानी का कंटेंट बढ़ा दिए तो 2 फायदा है। एक साइड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा साइड वर्कबिलिटी हो जाएगा। वो कितने करना है, ये बैलेंस है भाई, ये जस्ट बैलेंस है। समझ में आ गया ना? हाँ, ओके। नाउ कंप्लीट सर एक क्वेश्चन। हाँ, नहीं मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा जी, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब नाउ विद दिस बैकग्राउंड आई एम गोइंग टू दी 10 to 62 कोड, मतलब थोड़ा मतलब मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, हाँ ओके, ये 10 to 62 कोड है, मतलब वो लाइन टू लाइन आप पढ़ लीजिए। ओके, हाँ, मतलब डाउट है, मतलब कभी भी आप पूछ सकता है, बट अभी आपको बहुत टाइम है, मैं आपका डाउट एंटरटेन करूंगा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से चले जाएंगे। ओके ना, वी विल गो फॉर 1 by 1। हाँ, ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ओके, क्या क्या डाटा चाहिए? ये डाटा चाहिए। अगर कभी भी कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है, व्हाट आर द T3 में मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। दैट मीन T3 में क्वेश्चन पेपर पता है ना, 30 है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस। सो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी कन्वर्टेड इनटू 15 मार्क्स। ओके, रिमेनिंग 20 मार्क्स के लिए तो लॉन्ग आंसर के लिए 20 मार्क्स, उसका मतलब 5 क्वेश्चन दे देंगे। 5 क्वेश्चन भी ऐसा है, एक क्वेश्चन में 2 सब पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सब पार्ट रहेगा, सेकंड क्वेश्चन में 2 सब पार्ट रहेगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। सो टोटल है लॉन्ग आंसर है 8 क्वेश्चंस रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का मेल आ गया। मैं ये जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का मेल है, टुडे मॉर्निंग शी सेंड। ओके, so the pattern is 20 objective type questions and 4 long answer, 5 long answer questions. No, sorry, 4 में से भी 1 एक सेक्शन में 2 सब सेक्शंस रहेगा। दैट मीन्स नॉट ओनली माय पेपर, एवरी पेपर में पैटर्न इज सेम। ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है। मेटल में एग्जाम होगा, प्रोक्टर होगा, दैट मीन्स आपका कैमरा ऑन करना पड़ेगा, है ना। देखो ये कहा पे रश्मि, हाँ ये देखो, ये देखो, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो भी पैटर्न है, देखो सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन should be total 15 marks, number of questions may be preferably 30
and section B descriptive long answer questions, idigo 4 questions, and idigo with minimum 2 subsections in each question. समझ में आ गया ना? हाँ, ओके, ये मेल है फैकल्टी को, रिसीव हो गया. नाउ कम बैक टू दिस कोड. ओके, ये डाटा आपको चाहिए. स्टेप्स क्या है? F-C के इक्वल टारगेट स्ट्रेंथ इक्वल 1.65 स्टैंडर्ड डिविएशन. ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, टेबल नंबर 1 से एज्यूम करोगे. ओके ना? ये टेबल नंबर 1 में कौन सा ग्रेड कंक्रीट डिजाइन कर रहा है, ये कर रहा है. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो. आपको एक्चुअली मतलब ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट्स को लेते लेते आप है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आप है ये टेबल 2 से वाटर कंटेंट लेंगे एंड वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब जो भी ड्यूरेबिलिटी टेबल नंबर 5 है ना IS 456 का, वो किधर है? IS 456, IS 456 का जो भी ड्यूरेबिलिटी का जो भी टेबल नंबर 5 में IS 456, ये IS 456 का जो भी ड्यूरेबिलिटी टेबल नंबर 5 में से थोड़ा कम लेना चाहिए. दैट मीन्स उतना ले लिया तो आप मतलब बिगड़ जाएगा स्ट्रेंथ. सो दैट इज द मैक्सिमम. सो वो कभी मत लेना. ओके, नाउ थोड़ा मैं मैग्नीफाई कर देता हूं. ओके, ये टेबल नंबर 5, ये मटेरियल चैप्टर है, मतलब नाउ यू सी ये टेबल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है, ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट्स है. ओके, नाउ ये पूरा मतलब एग्जामिनेशन में ये पूरा ये टेबल नंबर 1 डिलीटेरियस, ये दीज आर दी मतलब कौन सा है? ऑर्डिनरी कंक्रीट्स है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट्स है, M60 ऑनवर्ड्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट्स है. ये या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फार्मूला क्या है? 5000 रूट FC के, एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए 0.7 रूट FC के. इसको देखो, ये दोनों फार्मूला आपको PhD में काम आएगा. फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है निकालने के लिए, अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए बीम्स बनाना जरूरत नहीं. FCK इज इक्वल 0.7 टाइम्स ऑफ द रूट FCK कर दिया तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आएगा. अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना ही है 5000 रूट FCK. ये दोनों फार्मूला है, मतलब देख लो. नेक्स्ट, इसके बाद ये पढ़ो. ये क्या है? नॉमिनल मैक्सिमम साइज. एंट्राइंड एयर है, परमिटेड है 5%. अगर 40 mm यूज किया तो हवा का जो परसेंटेज है ना, दैट मीन्स एंट्राइंड एयर है 4% तक है, परमिटेड है कोड. दिस इज द माइल्ड एनवायरमेंट, मॉडरेट एनवायरमेंट, सिवियर एनवायरमेंट, वेरी सिवियर. दैट मीन्स जो सरफेस एक्सपोजर कंडीशन. एक्चुअली दिस इज द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट. ये एक्सपोजर के लिए ये टेबल नंबर 5 में दिया है. देखो, माइल्ड एनवायरमेंट है तो, अगर प्लेन कंक्रीट है तो ये तीनों वैल्यूज फॉलो करो. आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट है तो ये तीनों वैल्यूज, ये 3 कॉलम्स, दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, ये तीनों फॉलो करो. समझ में आ गया ना? नाउ मेरा प्रेजेंट प्रॉब्लम है रेनफोर्स्ड कंक्रीट. इसके लिए तो आपका इन्वायरमेंट कौन सा? फॉर एग्जांपल सिवियर एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट. ये सिवियर एनवायरमेंट के लिए कितने मिनिमम सीमेंट यूज करना भाई? सीमेंट कंटेंट है मिनिमम 320 kg पक्का यूज करना ही है. एज पर कैलकुलेशन अगर आपको तो 300 ही आ गया, बट 300 डोंट यूज, बिकॉज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट शुड बी 320. ओके, एंड द मिनिमम ग्रेड शुड बी M30. बट प्रेजेंट केस में आई एम M40 डिजाइन कर रहा हूं सेफ साइड, एंड मैक्सिमम वाटर कंटेंट शुड बी कितने? 0.45. बट 0.45 यू कांट टेक. ओके, कम ले लीजिए.